All right, students, good evening to everyone. We are going to discuss one very important question which has come in JEE Advance 2013. All right, this is a question from the JEE Advance, that is 2013. It has come. The question is, let me first jot down the question. Question says, f maps 0 to 1 close interval into R, where f is twice differentiable. F is twice differentiable. f0 is equal to f1, f1 is equal to 0, and f double dashed x. I hope you know this symbol. F double dash means the fx is differentiated twice. Yes. All right. F double dash x minus 2 f dashed x, that is, it is differentiated once, plus fx greater than or equal to e to the power x when x belongs to 0 to 1 close bracket close interval. Then which of these is true for x lying between 0 and 1? The options are given as A 0 less than fx less than infinity, B minus half less than fx less than half, then C minus 1 by 4 less than fx less than 1, and D is minus infinity less than fx less than 0. Alright, once again let me remind you that this question was appeared in JEE Advanced Exam 2013. Okay, so let us see the proof of this one. First of all, we will focus on this particular relation which is given. Alright, Yes, sir. so in the solution I am starting from this only, that is, we have f double dashed x minus 2 f dashed x plus fx is greater than or equal to e to the power x. Okay, Yes. can we modify this thing in this manner? F double dashed x minus this 2 f dashed x, let me write as f dashed x minus f dashed x plus fx, and bring this e to the power x in the left hand side, means in this side, because you can see if x belongs to 0 to 1, then always this quantity will be positive. So we can safely bring this in the left hand side without changing the sign of inequality. So that is why I am writing divided by e to the power x, and this will become greater than or equal to 1. So far I think there is no any confusion. No, sir. Okay. Now what happens is e to the power x, let us we bring in the numerator so that it becomes e to the power minus x, and club these two together so that we can write it as f double dashed x minus f dashed x, and then e to the power minus x means when we are bringing this thing to the numerator and taking out this minus sign common, then can we write this one as what? Minus e to the power minus x, and within curly bracket f dashed x minus fx, all right, is greater than or equal to 1. So far is it clear?
Yes, sir. Okay. Now you see, focus this one very minutely, this whole thing. Do you find this whole thing is nothing but it is the differential coefficient, means this whole quantity is the differentiation of some function with respect to x, and that can be written d dx of e to the power minus x f dash x. Yes, sir. Similarly, are you finding this one is nothing but it is d dx of e to the power minus x fx greater than or equal to 1? Yes, sir. Yes, sir. See, if you have any doubt, let us we differentiate this thing with respect to x. What can we do? You can use u into v method, so that what happens, u into v means first function could be taken as this e to the power minus x. Yes, So if I am taking this one only, then e to the power minus x is constant. The differential coefficient of f dash x will be f double dash x, then plus this can be taken constant f dash x, and this can be differentiated with respect to x, that will give you e to the power minus x, and differential coefficient of minus x will be minus 1. yes, Is it clear? Yes, sir. So now what happens, this whole thing can be written now e to the power minus x f double dash x minus, this will be written as e to the power minus x and then f dash x. Yes, sir. Okay, so do you find e to the power minus x can be taken common, and inside we are left with what, f double dash x minus f dash x. So do you find this whole thing is same to this one? Yes, sir. ठीक. So can you write this whole thing, this thing, as the d dx of this d dx of e to the power minus x f dash x? yes, sir. Okay. In the similar manner, this whole thing can be written as this, means the d dx of e to the power minus x fx will give you this whole quantity. Yes, Am I clear or not? Yes, Yes. sir. Okay. yes, So this whole thing is greater than or equal to 1. This has become very clumsy, so let me just write it in fresh way. That is, I'm writing this whole thing again over here, means e to the power minus x f double dash x minus f dash x, then there was minus sign over here, minus e to the power minus x, and then what, f dash x minus fx greater than or equal to 1. So this we have written as what, d dx of e to the power minus x f dash x minus d dx of e to the power minus x fx greater than or equal to 1. Am I clear so far? yes, sir. Yes, sir. Now d dx can be taken like this, d dx of e to the power minus x f dash x minus, sorry, e to the power minus x fx greater than or equal to 1. Yes, sir. Once again you focus this particular part. Are you finding this one is nothing but it is the d dx of e to the power minus x fx? बात को ध्यान से समझिए, ये पूरा क्वांटिटी क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट है किसका, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स. Yes, sir. अगर डाउट लग रहा है तो लेट अस डिफरेंशिएट इट. क्या होगा, फिर से हम लोग u इंटू वी मेथड करेंगे. u इसको ले लिए, v इसको ले लिए, तो पहले इसको कांस्टेंट लेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट एफ डैश एक्स हो जाएगा, Yes, sir. प्लस एफ एक्स को कांस्टेंट लिए
ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ई टू द पावर माइनस एक्स, yes, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, -1 हो गया। तो फाइनली ये क्या क्या बन गया, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस, ये माइनस यहाँ बीच में आ गया, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स। देखिए तो यही वाला चीज़ यहाँ पर था, yes, सेम क्वांटिटी है ना ये दोनों, और इसी को मैंने ये लिखा है, क्या लिखा है, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स। ठीक, तो फाइनली दिस होल थिंग डू यू फाइंड कैन बी रिटन एज डी डी एक्स ऑफ e to the power minus x and fx, and this whole thing is given as greater than or equal to 1। ये जो क्वांटिटी है इसको मॉडिफाई करके कुछ लिख सकते हैं हम लोग। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर Yes, sir. एंड ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये जो, अच्छा इसी को आप पहले फोकस कीजिए, ये तो अपने आप में किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसका है, yes, Yes, sir. और जो हम लोगों को डी डी एक्स मिल रहा है किसका, इसका, उसको फिर डिफरेंशिएट किया जा रहा है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर। सेकंड डेरिवेटिव, ट्राई टू रिकॉल, this one is representing the second derivative of e to the power minus x into fx। yes, sir. Okay, Yes, sir. so if I am writing this e to the power minus x fx as gx, if e to the power minus x into fx is equal to gx suppose, then do you think this thing, यानी कि d dx of e to the power minus x fx is nothing but it is g dash x। Yes, sir. Again this whole thing g dash x is over here, this one, and g dash x का डिफरेंशियल यहाँ पर d dx किया जा रहा है, तो इसका मतलब है d dx of e to the power minus x f x can be written as equal to g double dash x। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, यानी कि ये पूरा क्वांटिटी जो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख रहे हैं, देखो ध्यान से, ये इसको हम लोग क्या जी डबल डैश टैक्स लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक, तो जी डबल डैश टैक्स, और वो जी एक्स क्या था, जी एक्स वॉज दिस, जी एक्स हम लोग लिए थे इसको, देखो यहाँ पर हम लिखे हैं जी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स। Yes, sir. तो जी डबल डैश एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। ठीक, तो अगर नंबर लाइन पर इमेजिन करो 1 को, तो 0 इसके पहले आएगा। Yes, Yes, sir. sir. ये जी डबल डैश एक्स का वैल्यू, देखो ध्यान से, जी डबल डैश एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो अगर जी डबल डैश एक्स 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 0 से भी बड़ा होगा। Yes, sir. तो कैन आई राइट जी डबल डैश एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। Yes, sir. यहाँ तक बात समझ में आई? सोच करके बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, याद करो, ये जी डबल डैश एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, क्या ये एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 जैसा सिचुएशन दिख रहा है? ये एफ, इसके साथ इसको तुलना मत करो, मतलब हम एक कोई फंक्शन ले रहे हैं, एफ डैश एक्स एफ एक्स फंक्शन ले रहे हैं, उसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। अब याद करिए, दो तो सिचुएशन आप लोगों को हम जब मैक्सिमम मिनिमम बता रहे थे, तो मैंने 2 सिचुएशन बताया था, कैसा, एक ये था और एक ये था। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी ये जी, अच्छा इसको छोड़ो, इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। ये जी डबल डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 में ध्यान से देखो, ये दोनों में से कौन सा सिचुएशन हम लोगों को दिखाई दे रहा है? ये वाला सिचुएशन इज
एप्लीकेबल ओवर हियर। याद करिए जब हम बताए थे कि व्हेन एफ डबल डैश एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो देन एक्स इज इक्वल टू ए, जो भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू जो ए अगर मान लो यहाँ पर ले रहे हैं हम या यहाँ पर ले रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू ए इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड इफ एफ डबल डैश एक्स is greater than 0 then x is equal to a is point of minima। ये सब हम पिछला क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। Yes. तो मैक्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये वाला होगा सिचुएशन यहाँ पर, और पॉइंट ऑफ मिनिमा ये वाला होगा। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। Yes. आ गई बात समझ में? Yes. Yes, sir. तो जब हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा यहाँ पर देख रहे हैं क्या, जी डबल डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा का सिचुएशन हम लोगों को दिखा रहा है। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर टिल दिस पॉइंट। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है Yes, सबको? sir. अभी देखो इसमें जब एफ डबल डैश एक्स वॉज लेस देन ज़ीरो, यहाँ क्या हो रहा था, कॉन्केव डाउन था। ये ध्यान से समझो, मतलब यहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स जो फंक्शन बन रहा है वो क्या है, उसका साइन जो है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन होने के चलते क्या करेंगे, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो जो डी वाई बाई डी एक्स उसके लिए आएगा, यानी कि एफ डबल डैश एक्स जो आएगा वो लेस देन ज़ीरो होगा। तो वो सिचुएशन ये हो गया। यहाँ क्या हो रहा है देखो ध्यान से, यहाँ पर ड्यूरिंग दिस पीरियड द tangent, if you are drawing at any point of this one, that tangent will be forming an angle with the x-axis, obtuse angle. So the slope of the tangent is negative to 0 and then it is coming positive। नेगेटिव से 0 देन पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका जो सेकंड टाइम जो डिफ्रेंशिएट करिएगा वो पॉजिटिव आएगा। Yes. Yes, sir. इसीलिए एफ डबल डैश एक्स जो है उसको हम लोग ग्रेटर दैन ज़ीरो ले रहे हैं। यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो, यहाँ पर ये वाला सिचुएशन है और यहाँ पर ये सिचुएशन है। आ गई बात समझ में? Yes, sir. अब आओ यहाँ पर ये जी डबल डैश एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो में से हम लोगों को ये वाला सिचुएशन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes. Yes, sir. तो यानी कि जी डबल डैश एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो will be for this particular diagram where you are finding the curve, this particular diagram is concave up। आया समझ में? concave up मतलब कि इसका कटोरी जैसा ऊपर की तरफ खुलेगा। Yes. पानी डालिएगा तो यहाँ पर पानी ठहर जाएगा, यहाँ पर पानी डालिएगा पानी गिर जाएगा वापस। ठीक है, Yes. अब आओ इस जी डबल डैश एक्स हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, जी एक्स, इसको हम लोग लिए थे जी एक्स। Yes, sir. और दो सिचुएशन हम लोगों को दिया हुआ है, मतलब एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 और 1 के बीच में ही है, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1। ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब हुआ इंक्लूडिंग। ठीक है, Yes. ओपन ब्रैकेट में 0 और 1 इंक्लूड नहीं करते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट जी जीरो क्या होगा। जी पहले तो जी एक्स क्या था, जी एक्स वाज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स, ये एक्स है। तो जी जीरो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ज़ीरो एंड एफ ज़ीरो। ठीक, Yes, sir. अभी देखो क्वेश्चन में यहाँ मेंशन था, ध्यान से देखिए कहीं पर दिया होगा एफ ज़ीरो इज इक्वल टू एफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला एफ ज़ीरो इज इक्वल टू एफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो वॉज गिवन। तो इसका वैल्यू तो ऑब्वियसली इट विल बिकम 1 और ये वाला 0 है, तो हम पूरा का पूरा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। आया समझ में? Yes,
sir. अच्छा, फिर उसके बाद G1 निकालो। फिर देखो क्या हो रहा है, e टू दी पावर यहाँ x की जगह पर 1 डालेंगे तो -1, ये भी 1 डिवाइडेड बाई e हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई e तो पॉजिटिव क्वांटिटी हुआ, लेकिन ये fx जो है ये क्या बन जाएगा, f1 बन जाएगा। और f1 का वैल्यू भी आपको 0 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो डोंट यू थिंक दिस होल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। Yes. मतलब G0 और G1 दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। Yes. ठीक, Sir. तो अगर हम लोग टेंटेटिव ग्राफ बनाते हैं किसका, Gx का, समझो बात, ये हम लोगों को पता चल गया G∬x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कि जो Gx का जो ग्राफ होगा वो कॉनकेव अप होगा। और ये भी मालूम हो गया कि G0 0 के बराबर है, G1 0 के बराबर है। तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे टेंटेटिव, ये एग्जैक्ट हम नहीं बना रहे हैं, देखो ध्यान से, तो यहाँ 0 होगा और यहाँ पर 1 आएगा। आई बात समझ में। Yes. और कॉनकेव अप है, कॉनकेव अप होने के लिए डोंट यू थिंक इट शुड बी लाइक दिस, मतलब Gx इज इक्वल टू e टू दी पावर -x fx का ये टेंटेटिव ग्राफ हमने बनाया है। ये वाला पॉइंट क्या है, ये है G0 और ये वाला पॉइंट क्या है, G1। आ गया समझ में, तो बोलो हाँ। Yes. Yes. हाँ, अब देखो ध्यान से, इस लाइन के नीचे कोई भी वैल्यू हम लोग लेंगे, मतलब कि Gx का वैल्यू यहाँ पर जो भी कुछ आ रहा है, डू यू फाइंड इट विल बी नेगेटिव ऑलवेज। मतलब ये 0 से नीचे y एक्सिस पर 0 से नीचे है, तो डोंट यू थिंक इस पूरे रीजियन में Gx का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात को समझ में आई है कि नहीं, Yes. ठीक है यहाँ तक, इज इट क्लियर। Yes, sir. तो ये वाला पोर्शन में Gx का वैल्यू हमेशा क्या होगा, डू यू थिंक इट विल बी लेस देन 0, Gx विल बी लेस देन 0। Yes. और Gx हम लोगों का क्या था, अभी देखो Gx अगर लेस देन 0 है तो कैन आई राइट दिस विल बी, अच्छा छोड़ो इसको रहने दो, Gx का वैल्यू क्या था, e टू दी पावर -x इंटू fx, तो e टू दी पावर -x fx इज लेस देन 0। तो इस पूरे क्वांटिटी को e टू दी पावर -x को ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो डू यू थिंक इट विल बिकम व्हाट, fx लेस देन 0 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर -x। देखो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये नेगेटिव होगा तो इधर जाने पर ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि e टू दी पावर -x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक है, 0 और 1 के बीच में है, तो जो भी वैल्यू आप डालेंगे x का, उसके चलते ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो यहाँ पर है वो चेंज नहीं होगा। तो fx यहाँ पर रह गया और e टू दी पावर -x राइट साइड में गया, तो 0 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर -x, तो डोंट यू थिंक दिस विल बिकम व्हाट, 0, यानी कि fx इज लेस देन 0। और अगर fx लेस देन 0 है तो ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेटर देन -∞। Yes. ठीक, इसके नीचे अगर हम लोग ले रहे हैं तो -∞ तक जा सकते हैं ना, और 0 तक हम लोगों को रहना है। मतलब fx का वैल्यू 0 से छोटा ही होगा और कहाँ तक रहेगा, -∞ तक, क्योंकि हम लोग ये टेंटेटिव ग्राफ बनाया है, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट वन। Yes, sir. आया समझ में। Yes, अब sir. देखो तो ये वाला ऑप्शन उन चारों में कौन सा है, लेट अस सी। देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन टू अस, सो डोंट यू फाइंड दिस वन इज द आंसर विच वी आर लुकिंग फॉर। सो D इज ट्रू। दो 2013 एडवांस का ये क्वेश्चन है, ये हमको लगता है 4 नंबर का रहा होगा। Yes, sir. मतलब 4 नंबर, मतलब हमको लगता है 1000-2000 का आपका वारा न्यारा रैंक में ऊपर। जेई एडवांस में मतलब कि मतलब रैंक आपका इम्प्रूव हो जाता है। एनीवे, तो वी विल डिस्कस एनी अदर प्रॉब्लम आफ्टर दिस। ठीक, ओके।